Hello everyone. Today I am going to deliver a lecture on powder method and physical developer for developing a latent fingerprint. So let's start. A powder method is basically used when the latent print is somewhere revealed at the crime scene. By using a fingerprint brush and an appropriate powder, the print is developed. क्लियर मीन्स कि जब कोई क्राइम सीन पर कोई भी लेटेंट प्रिंट मिलता है और जब हम पाउडर और फिंगरप्रिंट ब्रश के हेल्प से जब हम उसको डेवलप करते हैं, दैट इज द पाउडर मेथड, राइट. इन दिस केस द एप्रोप्रिएट पाउडर इज lightly applied to the suspected surface, means the place where there is a chance of getting a latent print, like with a fine fingerprint brush. Clear? And the brush is applied first in one direction. It means कि जो भी फ्रिक्शन रीजेज हैं फिंगरप्रिंट्स के, हम उस केस में एक तरफ से किसी एक डायरेक्शन से हम ब्रश जो है पाउडर के साथ अप्लाई करेंगे, देन इन द अदर डायरेक्शन. And when the ridge start appearing, it is brushed along the flow of ridges. और जब ridges डेवलप होना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे, ब्रश को रिज के फ्लो के डायरेक्शन में मूव करेंगे. क्लियर? And when the sufficient powder is adhered to the impression, the excess powder is carefully brushed away with the light soft touch to the brush. Means कि जब अपीयर हो जाए फिंगरप्रिंट तो उस केस में जो भी एक्सेस पाउडर वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हम उसको स्लाइटली टच करके ब्रश को हम उसको रिमूव आउट करेंगे. क्लियर? द डेवलप्ड प्रिंट आर इमीडिएटली फोटोग्राफ आफ्टर द एप्रोप्रिएट मार्किंग एंड इंसियलिंग. मीन्स कि जब भी लेटेंट प्रिंट जो है डेवलप हो गया है तो हमारा ड्यूटी होता है एज ए एक्सपर्ट टू इमीडिएटली फोटोग्राफ दैट प्रिंट्स. क्लियर? And the most commonly used powder are the black powder and the grey powder. It is depend upon the type of surfaces on which the print is present. We determine which print is which ink is going to be used. Right? Means there are many type of the ink or a powder, that is the black powder or grey powder. The black powder are suitable for the developing a print on the light color surface, जबकि ग्रे पाउडर आर सुटेबल ऑन द डार्क कलर सरफेस. ओके, इट मीन्स हम ये नोट ध्यान देते हैं कि जिसमें जो है मैक्सिमम कंट्रास्ट मिले बैकग्राउंड से और उसका अपीयरिंग डेवलपमेंट से, ठीक है, उस पाउडर का हम सिलेक्शन करते हैं. क्लियर? एंड द व्हेन द लेटेंट प्रिंट आर टू बी डेवलप्ड ऑन द मल्टी कलर सरफेस अ फ्लोरेसेंट पाउडर शुड बी यूज्ड. मीन्स सपोज कोई ऐसा सरफेस है जो कि मल्टी कलर है, तो उस केस में हमें जो है फ्लोरेसेंट पाउडर का यूज करना चाहिए जो कि ग्लो करता है अंडर द यूवी रेज. ठीक है? और डेवलपमेंट के बाद एज इट इज, जैसे कि और सब नॉर्मल पाउडर में हम फोटोग्राफ करते हैं, इसको भी फोटोग्राफ करेंगे बाय ऑर्डिनरी या ब्लैक एंड वाइट फिल्म. क्लियर? और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द पाउडर विच कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग अ लेटेंट प्रिंट. दैट इज प्योर ग्रे पाउडर, दैट इज यूज फॉर द जनरल मटेरियल. इट कैन बी अ कार्डबोर्ड, paper or anything. Clear? And the next is black powder. It is basically used for the paper, eggshell or a synthetic resin. Okay? And the next is white powder. It is basically used for the leather surfaces. If a fingerprint found on any leather surface, then we can apply a white powder. Okay? Otherwise the surfaces may be a rubber or any oily fingerprints. Clear? And the next is copper powder. It is basically used when the fingerprint is found on the plant stem or a leaf or any part of the plant. Clear? Means at that case when the fingerprint is found at the leaf of the plant, then copper powder is the suitable for this developing. Okay? And the next is gold powder. It is for the any metal which having a rough surface. ठीक है? जब कोई फिंगरप्रिंट जो है किसी मेटल पे मिलता है क्राइम सीन पर और जो कि रफ सरफेस है, उस केस में हम गोल्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक. एंड नेक्स्ट इज येलो पाउडर. इट कैन बी यूज्ड सेम एज द वाइट पाउडर, दैट इज इन द केस ऑफ लेदर एंड द रबर. क्लियर? नेक्स्ट इज ड्रैगन ब्लड पाउडर. इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मेटल विच हैविंग अ रफ सरफेस और अ स्टोन.
Clear? Next is indigo powder. It can be used when the surface is of any synthetic resin or a metal frame. Clear? Same like a aluminum powder. It is suitable for the glass और सिरेमिक्स. ओके, मीन्स यदि कोई क्राइम सीन पर ग्लास है, कोई बॉटल है या फिर कोई ग्लास है और उस पर फिंगरप्रिंट, कोई लेटेंट फिंगरप्रिंट होने का चांस है, तो उस केस में हम जो है मैक्सिमम जो है एल्युमिनियम पाउडर प्रेफर करेंगे टू डेवलपिंग अ लेटेंट फिंगरप्रिंट. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंस पाउडर. इट इज, एज आई टोल्ड अर्लियर, इट इज सुटेबल फॉर द कलर्ड प्रिंट और अ कलर्ड सरफेस, मल्टी कलर्ड सरफेस और अ कलर पेपर प्रिंट. Clear? Next is anthracene powder. It is also used in case of the leather and the rubber, right? And one is magnetic powder. Magnetic powder जो है पेपर के केस में, कार्डबोर्ड के केस में हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कि जो कि मैग्नेटिक ब्रश होता है. ठीक है? नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ब्रश एंड द पाउडर. हम देखेंगे कि मैग्नेटिक ब्रश क्या होता है, पाउडर क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं. क्लियर? So to increase the efficiency in the development of latent print, forensic expert or investigating officer may also use the magnetic brush and the powder for the purpose. Means कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक जो टेक्निक्स है, मैग्नेटिक ब्रश एंड पाउडर का जो टेक्निक्स है वो कहीं ना कहीं सुपीरियर है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पाउडर्स. ठीक है? और ये इसमें जो है रिजल्ट जो है मोर इफिशियंसी के साथ आता है और मोर क्लियरली डेवलप होता है. क्लियर? द मैग्नेटिक ब्रश वर्क विद द मैग्नेटिक पाउडर ओनली. मीन्स कि जो इसमें क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रश होता है जो कि उसमें एक छोटा सा स्मॉल सिलेंडर होता है विच क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड बाय पुशिंग इन एंड आउट ऑफ दैट रॉड. क्लियर? और जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसके साथ जो मैग्नेटिक पाउडर होता है उसमें जब हम टच करते हैं उस पर तो वो फॉर्म करता है एज अ structure like a brush. ठीक है? The magnetic brush and the attracting powder are quite useful in dusting overhead and the sloping surface for the development of the latent print. Means कि जो ब्रशिंग जो मैग्नेट ब्रश और पाउडर का टेक्निक्स है जो मोस्ट सुटेबल होता है जब कोई फिंगरप्रिंट ऐसे जगह पर हो जो कि लाइक अ रूफ और अ सीलिंग या फिर कोई स्लोप एरिया पर हो जिस पर कि पाउडर जो है अडेयर ना हो पाए और कहीं फिक्स ना हो पाता है. उस केस में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? दिस ब्रश कैन बी यूज्ड इन लोकेटिंग द लेटेंट प्रिंट ऑन द पेपर, टिश्यू, लाइटवुड, लेदर, कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक एंड ग्लासेस. क्लियर? मीन्स मैग्नेटिक ब्रश का जो है, मैग्नेटिक पाउडर का जो टेक्निक्स है हम यूज कर सकते हैं किसी भी केस में, पेपर के केस में, टिश्यू पेपर के केस में या फिर लाइट वुड जो भी लकड़ी का केस है उस केस में, लेदर के केस में, कार्डबोर्ड के केस में. क्लियर? नेक्स्ट टेक्निक इज DFO, that is 1,8-dijefuron 9,1. This is basically other technique or inventive techniques that is used to develop the latent print on the porous surface. Porous surface means like a paper or a cardboard. Okay? It is basically react with the amino acid present in the perspiration or sweat. ठीक है? When the reaction is complete, the developed latent print will be फ्लोरेंस विथ द यूज ऑफ लेजर और अल्टरनेट लाइट सोर्स. मीन्स क्या होता है कि ये जो है एक केमिकल्स है जिसमें कि रिएक्शन होता है एमिनो एसिड से जो कि ऑलरेडी स्वेट और जो हमारे पर्सपिरेशन है उसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है. तो DFO जो है उससे रिएक्ट करता है. ठीक है? और जो एक फ्लोरेसेंस लेटेंट प्रिंट जो है फ्लोरेसेंस देता है बाय यूजिंग द लेजर और एनी अल्टरनेट लाइट सोर्स. मीन्स जब हम उस पर स्प्रे किए DFO को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पैटर्न डेवलप हो गया और जब हम लेजर प्रिंट या लेजर लाइट सोर्स या फिर कोई अल्टरनेट लाइट सोर्स यूज करेंगे तो क्या होगा, वो फ्लोरेसेंस देगा. जैसे ही फ्लोरेसेंस दिया हम उसका फोटोग्राफ लेकर के फर्दर रिकॉर्ड के पर्पज से हम यूज कर सकते हैं. क्लियर? A DFO can be spray on the specimen or a documents or can be dipping the specimen in the DFO. After treatment the specimen must be dried in oven at high temperature that is around 90 degree Celsius for 20 minutes. हम क्या करते हैं कि DFO को जो है जिस स्पेसिमेन पे हमें सस्पेक्टेड है कि यहाँ पे लेटेंट प्रिंट है उस पर हम DFA केमिकल को स्प्रे करते हैं या फिर उस केमिकल को
किसी कंटेनर में ले करके जिस सरफेस पर कोई प्रिंट है हम उसको डिप करते हैं, क्लियर। और उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे ओवन में हम उसको 20 मिनट के लिए अप्रॉक्स 90 डिग्री टेम्परेचर पे हम उसको रखते हैं। और इसके बाद ड्राई होने के बाद जो हम लेजर लाइट सोर्स या फिर कोई अल्टरनेट लाइट सोर्स से हम उस पर जब डालते हैं तो क्या होता है, फ्लोरेसेंस क्रिएट होता है, क्लियर। नेक्स्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और सपोज अ लेटेंट फिंगरप्रिंट इज ऑन ग्लास, देन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड टेक्निक इज more efficient and successfully can be developed. Okay, the area between the ridge is etched by the acid. मीन्स क्या होता है कि जो ridges के बीच का जो फॉरो पोर्शन होता है उससे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से क्या होता है, वो ईस्ट हो जाता है। मीन्स वो एरिया गैप बन जाता है और इजली जो है जो वैक्स सब्सटेंस जो है प्रिंट का वो खुद से ही रिपेल आउट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है पैटर्न जो है क्लियर विजिबल हो पाता है, क्लियर। Next is osmic acid method. The latent print made by the visible on the paper and other allied materials by spraying a solution of osmic acid over the suspected paper. Means कि यदि कोई पेपर है, ठीक है, और उस पर कोई लेटेंट प्रिंट्स है तो हम उसमें क्या करते हैं, जो ओस्मिक एसिड का सोल्यूशन होता है हम उस पर स्प्रे करते हैं, ठीक है। और स्प्रे करने के बाद जब हम पेपर को ट्रीट करते हैं तो उसको मॉइस्ट कंडीशन में लाइट के सामने एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने से क्या होता है, फिंगरप्रिंट जो है विजिबल हो जाता है। द सस्पेक्टेड एरिया ऑफ द पेपर एंड द रिज गेट डेवलप, ओके, इन ब्लैक कलर आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ लाइट। मीन्स जैसे ही हम एक्सपोज करेंगे लाइट को तो ब्लैक कलर का एक पैटर्न एरिया जो भी फिंगरप्रिंट का होगा वो डेवलप हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट इज मर्क्यूरिक आयोडाइड मेथड। The latent fingerprint on the paper and other allied materials may be developed by using the fume of the mercuric iodide also. मीन्स कि यदि मर्क्यूरिक आयोडाइड का हम अगर फ्यूम का इस्तेमाल करके भी हम लेटेंट फिंगरप्रिंट को डेवलप कर सकते हैं, ओके। द फ्यूम ऑफ द मर्क्यूरिक आयोडाइड मे बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ 4 पार्ट ऑफ मर्करी एंड 5 पार्ट ऑफ आयोडाइड इन अ डिश। हम क्या करते हैं कि एक डिश में 4 पार्ट मर्करी एंड 5 पार्ट आयोडाइड को लेते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, वेपोराइज होगा और फ्यूम डेवलप होगा। फ्यूम जो है हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है उस पर जा करके रिएक्ट करेगा और विजिबल हो पाएगा, ठीक है। द सस्पेक्टेड मटेरियल रन अक्रॉस द फ्यूम। कोई एक चैम्बर लिए हम जो भी सस्पेक्टेड मटेरियल है, पेज है या फिर कोई कार्डबोर्ड है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर उस पर फिंगरप्रिंट लेटेंट फिंगरप्रिंट पाने की चांस है तो हम उसको क्या करेंगे, फ्यूम के मतलब उसमें रखेंगे, उस एक इनक्लोज्ड एरिया में रखेंगे या फिर उसको across the fume रखेंगे, ठीक है। then there will be the development of latent fingerprint by the mercuric iodide method, clear। so thank you.